आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले अभी तक की सुर्खियां। और अब पेश है खबरों की तफसील। कांग्रेस की साबिक सदर और राज्यसभा के रुकन राहुल गांधी ने लंदन में हिंदुस्तानी बरादरी से खिताब करते हुए कहा कि ये शर्म की बात है कि आप कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में तकरीर कर सकते हैं लेकिन हिंदुस्तानी यूनिवर्सिटियों में नहीं। अपने खिताब में बीजेपी और आरएसएस पर भी तनकीद की है और उन्होंने कहा कि मुल्क में बेरोजगारी महंगाई एक बड़ा मसला है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के मुस्तकबिल को महफूज बनाने और मुल्क को कामयाबी की राह पर गामजन करने के लिए हम सबको इकट्ठा होना चाहिए। किसी के खिलाफ तशद्दुद का कोई फायदा नहीं होना चाहिए। While I was speaking over there, it is quite strange that an Indian political leader can give a talk in Cambridge University, Harvard University, but he can't give a talk in India, in a university in India. Right? And the reason is that our government simply does not allow any idea of the opposition, any concept of the opposition to be discussed. Same happens in Parliament House when there are important things that we need to speak about: demonetization, GST, the fact that the Chinese are sitting inside our territory. When we try to raise these questions, we're not allowed to raise them in the House. It's a fact. It's shameful, but it's true. And this is not the India that all of us are used to. Our country is an open country where we pride ourselves on our intelligence, respect each other's opinions, listen to each other. And that atmosphere has been destroyed. The biggest issues in India today are unemployment, price rise, and the violence that Indian women face. That third one is a hidden issue, nobody speaks about it. But when you walk across India and you talk to people, those are the three things that you hear. Most women complaining about the violence that they're facing, the fact that they are worried to walk on the streets of our country, huge amount of unemployment, and price rise, and the concentration of wealth. One or two business people controlling pretty much every business. Of course, on the other side, we have an ideology of hatred and violence, disrespectful ideology that attacks people because of their ideas. And you must have noticed one thing, and this isn't the nature of the BJP and the RSS. If you noticed a statement of the foreign minister, he said China is much more powerful than us. Because China is much more powerful than us, how can I pick a fight with them? Matlab, at the heart of the ideology is cowardice. And the foreign minister of the country is saying it. You imagine he's saying China is stronger than us, so we can't fight with them. Achha, the British were stronger than us, so then we shouldn't not have fought with them. How would we ever get independence? How would we ever get independence if we had followed the BJP's principle and the RSS principle that if they're stronger than us, if they're stronger then we don't fight them out, we would be still ruled by the British. Right? So at the heart of their idea is cowardice.
And that's the lesson for everybody, and including the people in India. As you said, डरने की कोई जरूरत नहीं इनसे. And of course you've done us proud because you've been successful, because you've made a lot of money, you've developed a lot of businesses. But that's not the real reason you made us proud. The real reason you made us proud is because you respect the people you live with, you respect the different cultures, you respect the fact that you're living in England, you listen to their perspective, you embrace their perspective, you tell them about our perspective, and in that way both groups of people improve and do better. आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने कहा है कि अंग्रेजों की हुकूमत से पहले हिंदुस्तान की 70% आबादी तालीम याफ्ता थी और बेरोजगारी नहीं थी, जबकि इंग्लैंड में सिर्फ 17% लोग पढ़े लिखे थे। उन्होंने अपना तालीमी मॉडल हिंदुस्तान में नाफिज किया और हिंदुस्तान के मॉडल को अपने मुल्क में नाफिज किया, जहां अब 70% तालीम याफ्ता है और हम 17% तालीम याफ्ता रह गए हैं। हम जानते हैं कि अंग्रेज इस देश पर हावी होने के पहले हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था में अपने देश की 70% जनसंख्या साक्षर थी, शिक्षित थी, और उस शिक्षा के बलबूते सब लोग अपनी अपनी आजीविका का रास्ता खोज लेते थे, उसको प्राप्त कर रहे थे, बेरोजगारी लगभग नहीं। उसी समय इंग्लैंड में जो शिक्षा व्यवस्था चल रही थी तो वहां 17% साक्षर था। यहां आने के बाद अंग्रेजों ने हमारी उस व्यवस्था को, जो हमारे 70% लोगों को शिक्षित रखती थी, उसको कबाड़खाने में डाल दिया। कबाड़खाने में डाला नहीं, वो यहां से ले गए अपने देश में, उसको लागू किया और उनकी शिक्षा पद्धति को यहां लाया, तो 17% हम साक्षर बन गए, 70% वो साक्षर। ये इतिहास का सत्य है। वो व्यवस्था क्या थी? हमारे यहां पर शिक्षक सिखाता, सबको सिखाता, उसमें वर्ग जातियों को भेद नहीं होता। आदमी अपना जीवन अपने बलबूते सिखा सके, यहां तक की शिक्षा सबको मिलती। गांव में जाके शिक्षक सिखाता था, इसलिए नहीं सिखाता था कि उसको अपना पेट भरना था, वो इसलिए सिखाता था कि शिक्षा देना उसका काम है, ज्ञान दान उसका कर्तव्य है, सिखाना उसका धर्म है, और गांव उसके आजीविका की चिंता करता है। चलिए इस वक्त की बड़ी खबर क्रिकेट के हवाले से। जी हां, जनूबी कश्मीर का एक तेज गेंदबाज अब टीम इंडिया में शामिल हो सकता है। इसराइल के हवाले से खबर आ रही है कि अगर जसप्रीत बुमराह, जो कि चोट की वजह से फिलहाल टीम इंडिया से बाहर है, हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के तजुर्बाकार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, जो कि तवील अरसे से इंजरी का शिकार हो गए हैं और उसके बायस वो टीम इंडिया से बाहर है, जहां पर जो एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट्स में उनकी गैर मौजूदगी को खोया था। उनकी अदम मौजूदगी से हिंदुस्तानी टीम को काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ा है। ताम उनकी कमी जम्मू कश्मीर के तेज गेंदबाज उमरान मलिक ने किसी हद तक अगरचे पूरी कर दी है, लेकिन अब डोमेस्टिक क्रिकेट में ऐसे ही एक बॉलर ने सबकी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कर ली है, और ऐसे में अगर बुमराह अपनी चोट से जल्द ठीक नहीं हो पाते तो ये गेंदबाज उनकी जगह ले सकते हैं। वसीम बशीर नामी जो नौजवान है, जिनका ताल्लुक जनूबी कश्मीर से है, डोमेस्टिक लेवल पर उसने अच्छी गेंदबाजी की है। ये तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की जगह ले सकता है। टीम में जो खिलाड़ी, टीम इंडिया के स्टार खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह की जगह ले सकता है, वो भी उमरान मलिक की तरह, यानी कि जनूबी कश्मीर से उनका ताल्लुक है। वसीम बशीर नामी नौजवान का ताल्लुक जनूबी कश्मीर से, और वसीम की उम्र सिर्फ 22 साल है। अपनी तेज गेंदबाजी से बल्लेबाजों के होश भी उड़ा दिए। आपको बताते हैं कि वसीम बशीर की एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रही है। उसने अपने जानलेवा बाउंसर से बल्लेबाजों को काफी परेशान कर रखा है। वो जम्मू कश्मीर के अंडर 25 टीम का हिस्सा है। ये आप वसीम बशीर की गेंदबाजी देख सकते हैं, किस तरह को तेज गेंदबाजी करते हैं
बाउंसर के साथ और जहां पर उन्होंने बल्लेबाजों को काफी परेशान भी किया है। आने वाले वक्त में प्रैक्टिस के साथ और भी खौफनाक हो सकता है। आपको बताते चले कि हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के तजुर्बाकार ऑलराउंडर इरफान पठान को अक्सर नौजवान तेज गेंदबाजों की मदद करते देखा जा सकता है। उमरान मलिक की कामयाबी में भी इरफान पठान का एक बड़ा हाथ है और ऐसे में अब वो नौजवान वसीम बशीर के भी सरपरस्त का किरदार अदा कर रहे हैं। वसीम बशीर जिस तरह से बॉलिंग कर रहे हैं उससे लगता है कि वो जल्द ही कुछ बड़ा करके दिखाएंगे। तमाम आईपीएल फ्रेंचाइजीज की नजरें भी उन पर जमी हुई होंगी और अगर कोई खिलाड़ी किसी भी वजह से जो उनका स्क्वाड होगा वो उससे बाहर होता है तो वसीम बशीर को उसकी जगह मिल सकती है। ऐसे में वसीम बशीर को आईपीएल 2023 में खेलते देखना हैरान कुन नहीं होगा। जम्मू कश्मीर नेशनल पीपल्स फ्रंट ने शुमाली कश्मीर के बांडीपोरा में मंशियात की बिद्दत और मंशियात के इस्तेमाल के खिलाफ वसी पैमाने पर अपनी मुहिम का आगाज किया और पहले मरहले का आगाज शुरू कर दिया। इंसदाद मंशियात मुहिम के आगाज के मौके पर JKNPF पार्टी के सरपरस्त संजय कुमार ने कहा है कि मंशियात का मुकाबला करने के लिए वो पूरी तरह से यूटी में मुख्तलिफ प्रोग्राम चलाए जाएंगे। मंशियात की बिद्दत ने माशरे खासकर नौजवानों को बुरी तरह से मुतासर किया। उन्होंने कहा कि हम एक फरीक के तौर पर इस मसले को हल करने के लिए पुरज़्म हैं और इस बात को यकीनी बनाएंगे कि मंशियात के बिद्दत के लिए हमारे अज़म को बरकरार रखा जाएगा। प्रोग्राम में पार्टी के सदर मुजफ्फर शाह और पार्टी के दीगर अरकान ने शिरकत की। एक रैली निशात पार्क बांडीपोरा से गुलशन चौक बांडीपोरा तक निकाली गई। रैली में सैकड़ों मर्द ख्वातीन के साथ साथ बच्चों ने भी शिरकत की थी। बुरी बात है, ड्रग नहीं लेना है और ड्रग से बहुत ज्यादा परेशानी कश्मीर वैली को हुई है, तो लोग ही इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सबके एफर्ट से, कलेक्टिव एफर्ट से ये जो एनिमी है उससे निजात पाया जा सकता है। अब कीजिए, हम तो आप लोगों के साथ शामिल होने आए थे इसमें। जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट, तो हमारी पार्टी का जो प्लान है, मेन मुद्दा मकसद जो है वो ड्रग के खिलाफ जंग, करप्शन के खिलाफ जंग और वायलेंस के खिलाफ जंग। तो इसी जंग में आज हमने पहला मोर्चा बांडीपोरा में खोला और शुक्र है अल्लाह का कि हम पूरी तरह से सफल हुए। काफी लोग जमा हुए, काफी लोगों ने हमारा साथ दिया और ये ड्रग जो है बहुत खतरनाक बीमारी है। ये हाल क्या है, अंदर से हम खोखले हो चुके हैं और कुछ पॉलिटिकल पार्टियां इस ड्रग एब्यूज को एक हथियार के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। हमारी अभी यहाँ शुरू हुआ है 9 मार्च को हम अनंतनाग में एक मार्च निकालेंगे और 14 को हम कुलगाम में, 14 मार्च को कुलगाम में हम मार्च निकालेंगे, 15 को हम पुलवामा में मार्च निकालेंगे और 19 को हम जम्मू में मार्च निकालने वाले हैं, 24 को श्रीनगर में हम मार्च निकाल। चलिए इस वक्त की बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के हवाले से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। एलजी मनोज सिन्हा ने जम्मू में शिकायती कैंप का इफ्तिताह किया है। आपको बताते चले बड़ी खबर, शिकायती कैंप का इफ्तिताह किया है। सन 47 के महाजरीन पर बात की है। एलजी मनोज सिन्हा की जानिब से जम्मू के अंदर हुकूमती सतह पर मुश्किलात को हल करने का भरोसा दिलाया है। आपको बताते चले कि जम्मू के अंदर ये कैंप मुनक्कद हुआ है। ये स्पोर्ट स्टेडियम बोर कैंप छाथा सतवारी के अंदर है, जहां पर एलजी मनोज सिन्हा की जानिब से इस कैंप का इफ्तिताह हुआ है, जहां पर उनकी मुश्किलात और उनके जो मसाइल है उन्हें सुना जाएगा। और साथ ही साथ आज उन्होंने उन्हें यकीन दिलाया, जब इस कैंप का इफ्तिताह किया तो यकीन दहानी की कि आपके जो भी मुश्किलात और मसाइल होंगे उन्हें तरजीह बुनियादों पर हल करने की भरपूर कोशिश की जाएगी। जो महाजरीन है उनके हवाले से इस कैंप का इफ्तिताह किया गया। ये कैंप रखा गया था और आज बाज़ाब्ता तौर पर इस कैंप का इफ्तिताह हुआ है। जम्मू के अंदर, सतवारी जम्मू के अंदर
बोर कैंप छाथा सतवारी के अंदर इस कैंप का इफ्तिताह हुआ है, जहां पर यह शिकायती कैंप है और इस सिलसिले में उनकी शिकायत सुनी जाएगी और उन्हें हल करने की उन्होंने भरपूर यकीन दहानी भी की है। जम्मू की जहां पर मनोज सिन्हा एलजी ने आज वहां पर एक कैंप का इफ्तिताह हुआ है और उसके साथ साथ ये जो शिकायत के हवाले से, ताकि वो शिकायत यहां पर कर सकते हैं और उन्होंने इस हवाले से उन्हें यकीन दहानी दी कि जो भी आपके मुश्किलात और मसाइल होंगे उन्हें हल करने की भरपूर कोशिश की जाएगी। उखू, काकपुरा और निवा पुलवामा में एक गैर सरकारी तंजीम ने एक मुफ्त तिबी कैंप का एहतमाम किया, जिसमें डॉक्टर जलील बतौर मेहमान खुसूसी शामिल हुए। इस मौके पर सैकड़ों बीमारों का इलाज मुआवजा किया गया और मुफ्त अद्वियात भी तकसीम की गई। मकामी लोगों ने रजाकार तंजीम की जानिब से ऐसे कैंप मुस्तकबिल में भी मुनक्किद कराने की मांग की है। इस मौके पर हाजरीन में फूड किट्स, खाद और बच्चों में स्टेशनरी तकसीम किए गए, जबकि अमराज में मुब्तला कई अफराद में चेक भी तकसीम किए गए हैं। एनजीओ के जेके चेयरमैन निसार अहमद भट्ट ने कहा कि आम लोगों तक जानकारी पहुंचाने के लिए मेडिकल कैंप मुनक्किद कराना उनका काम है और वो ये काम करते रहेंगे। उसके साथ साथ ही उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल में जम्मू कश्मीर और मुल्क के बाकी शहरों में भी ऐसे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। पहले मैं ये कहूँगा, जो हमारा ये प्रोजेक्ट है, ऑर्गेनाइजेशन हमारी जो है किसान श्रमिक सुरक्षा योजना, हमारा मकसद ही है कि आम लोगों तक इसके बेनिफिट्स हम पहुँचाए। और जो आज हमने यहाँ पे प्रोग्राम रखा, इसमें हमने लोगों को चेक्स प्रोवाइड की, कैंसर पेशेंट्स, किडनी फेलियर पेशेंट्स, टाइफाइड मलेरिया पेशेंट्स को, और उनको खाद हमने प्रोवाइड की, उनको कापी पेन बच्चों के लिए हमने प्रोवाइड की, मेडिसिन हमने पेशेंट्स को यहाँ दी, जो आप लोगों ने खुद भी देखा यहाँ पे। तो ये हमारा प्रोग्राम जो है पूरे JNK के अंदर चल रहा है, हिंदुस्तान के बाकी 22 स्टेट्स के अंदर ये प्रोग्राम चल रहा है, जिसका चेयरमैन ऑल इंडिया लेवल पे मिस्टर आदर्श कुमार यादव जी हैं और स्टेट लेवल पे यहाँ पे मिस्टर निसार अहमद भट्ट साहब हैं। मैं वाइस कोऑर्डिनेटर डॉक्टर जलील एज काम कर रहा हूँ इस प्रोजेक्ट को आम लोगों तक पहुँचाने के लिए। इसके बेनिफिट जो है, इंश्योरेंस है, किडनी फेलियर है, खाद है, ट्यूशन फीस हम फ्री कर रहे हैं, खाद है, टूल्स हैं और सॉइल टेस्टिंग वगैरह। इस प्रोग्राम का मिशन हमारा यही है कि आम लोगों तक इस मिशन के जो फायदे हैं। जिला तरक्याती कमिश्नर डोडा विशेष वेशपाल महाजन CMO की हिदायत पर बदरवाह में एक खुसूसी NCD स्क्रीनिंग कम मेडिकल चेकअप कैंप शुरू किया गया है। हेल्थ वर्कर्स की 7 टीमें अगले 5 दिनों तक शहर में एक वक्त में 7 मकामात पर ये कैंप लगा रही हैं और ये कैंप BMO बदरवाह डॉक्टर अशरफ कुच्चे की निगरानी में काम कर रहे हैं। इन कैंपों में मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट किए जा रहे हैं। लोगों ने जिला इंतजामिया का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि आने वाले वक्त में भी इस तरह के कैंप मुनक्किद होने चाहिए ताकि गरीब आवाम को फ़ायदा मिल सके। हो रही है, बहुत अच्छी बात है। हर फैसिलिटीज अवेलेबल हो रही है वार्डों में, तो मैं शुक्रगुजार हूँ गवर्नमेंट की। और ये जो टीम है तो अच्छी बात है, लोगों को ऐसे टेस्ट करने के लिए कहीं जाना पड़ता था, तो ये तो अब हर वार्ड में ये अवेलेबल हो रहा है। तो लोगों को सबसे पहले हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, हेल्थ है तो सब कुछ है। तो अब हम सबको मतलब कि वार्ड वाइज ये अवेयर करें कि आप आओ, यहाँ टेस्ट हो रहे हैं फ्री। ये जो 4 टेस्ट हो रहे हैं, BP और ये शुगर, तो बाकी जो 4 टेस्ट हो रहे हैं, तो मैं लोगों से ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ तो प्लीज इसका फायदा आप उठाएं। तो क्या जो लगातार CMO साहब है और DC साहब जो लगातार प्रयास कर रहे हैं लोगों की हेल्थ का ख्याल रखा जाए, तो किस नजर से आप सराहते हैं इनके कदम को? नहीं, बहुत अच्छी बात है। तो मैं आपको पहले भी बोला कि हेल्थ है तो सब कुछ है, लेकिन अब ये हेल्थ, ये फिटनेस तो मस्ट है इंसान के लिए। हेल्थ होगी तो सब कुछ है, हेल्थ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आज दिन ये कैंप चलेगा, जी तो जी, क्या लगता है आपको अच्छी बात है? नहीं, अच्छी बात है। मैं तो खुद, हालांकि एक मेंबर होने के नाते मैं लोगों के डोर टू डोर चली गई, मैंने उनको फोन पे भी बोला, ऐसे भी गई, क्योंकि ये जो लाभ हमें दे रहे हैं इसका फायदा उठाओ। देखिए, आज यहाँ पे मेरे वार्ड नंबर 2 में कैंप लगा हुआ NCD का। इसमें क्या है कि पब्लिक के 4 टेस्ट किए जा रहे हैं, जिसमें कि लोगों को पता लगेगा कि उनको क्या शुगर है या कौन सी है, जिनको
बीपी भी टेस्ट कर रहे हैं, चार्जर टेस्ट हो रहे हैं। मैं लोगों से ज़्यादा अपील करता हूँ कि आइए इसका फ़ायदा उठाइए, अपने टेस्ट करवाइए और साथ में जो भी कमी है, जिसका बीपी हाई है जाएगा, ऐसे पता नहीं लगता है। तो कैसा कदम है ये डीसी साहब की तरफ से और सीएमओ साहब की तरफ से? देखो, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया है, जिससे कि लोग आप देखिए कितनी पब्लिक आ रही है टेस्ट कराने के लिए। लोगों का फायदा है और वो अपने टेस्ट करा सकते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, इसका फायदा उठाएं। तो आप चाहते हैं कि ऐसे टेस्ट जो रेगुलरली जो लगे वार्डों में चाहे लोगों को जो है डोर स्टेप पे जो है फैसिलिटीज मिले? देखिए, ये टेस्ट इन्होंने आज हर वार्ड में चल रहे हैं, 5 दिन के लिए टेस्ट के लिए रखा है। मैं चाहता हूँ कि ये अगर 2-3 महीने के बाद एक मल्टी स्पेशलिटी हेल्थ सेंटर की जानिब से रेनावारी श्रीनगर में 2 रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद किया गया है, जिस दौरान कहा गया है कि किस तरह फिजियोथेरेपिस्ट दर्द को ख़त्म करने के लिए सुई का इस्तेमाल किया जा रहा है और बगैर दवा के मरीजों के दर्द को भी कम किया जा सकता है। डॉक्टर सुहेल ने तलबा को मुख्तसर इस हवाले से लेक्चर भी दिया है और प्रैक्टिकल पेश करते हुए वो इसको कैसे कम कर सकते, इस दर्द को कैसे ख़त्म कर सकते हैं, इस हवाले से उन्होंने जानकारी फराहम की। जी, जो ये 2 डेज़ वर्कशॉप है, ये है कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट है। जो भी नए स्टूडेंट्स हैं या जिन्होंने ऑलरेडी किया है, कि इस वर्कशॉप से क्या होगा कि ये इसका नाम जो है ड्राई नीडलिंग वर्कशॉप। ये ड्राई नीडलिंग ये जो है इन्वेजिव एक प्रोसीजर है, तो इससे हम क्या करते हैं कि पेन मैनेजमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड, ट्रिगर पॉइंट्स जो है हम इससे डीएक्टिवेट करते हैं ट्रिगर पॉइंट्स। एंड रेंज ऑफ मोशन जो जॉइंट्स में है वो कम होता है ड्यू टू द टाइटनेस ऑफ मसल, जिसमें ट्रिगर पॉइंट्स नॉट्स टॉट बैंड्स बन जाते हैं, तो हम उनको ट्रिगर पॉइंट्स को डीएक्टिवेट करते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि पेन जो ये टॉट बैंड्स है ये डीएक्टिवेट होते हैं, वहाँ पे सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाता है, ऑक्सीजनेशन वो टिश्यू में आ जाता है, हीलिंग प्रमोट होती है और फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है और ऑटोमेटिकली क्या है कि रेंज ऑफ मोशन जो जॉइंट्स का है वो इंप्रूव होता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन रिलीजिंग एंडोर्फिन्स, जो कि पेन रिलीविंग हार्मोन्स है, जो ये हम ड्राई नीडलिंग करते हैं तो उससे क्या है कि हार्मोन्स भी रिलीज हो जाते हैं। तो ये इसका इफेक्ट है। वेरी गुड कि अभी जो है नए फिजियोज है कि फ़र्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ कि ये वर्कशॉप मैं तो ऑलरेडी बाहर भी कंडक्ट करता हूँ कि बॉम्बे में, मैंगलोर, बाकी डिफरेंट स्टेट्स में एज अ इंस्ट्रक्टर, बट आज फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ कि जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं इन्होंने बहुत एंथुसियाज्म दिखाया कि हम भी ये सीखेंगे। एंड इससे क्या है कि लोगों को एक आराम मिलेगा, फ़ायदा होगा कि पेन रिलीव जो कि मेडिसिन है उसमें बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स है, तो वो हम प्रिवेंट करने के लिए वी कैन यूज़ दिस टेक्निक। दिस इज़ कॉल्ड मैजिक टेक्निक। तो वेरी इफेक्टिव है। इस पर कोई हम मेडिकेशन यूज़ नहीं करते हैं। ये नीडल जो होती है ड्राई नीडल होती है, तो बट हमको टारगेट क्या करना है कि राइट ट्रिगर पॉइंट, जो कि मसल नॉट्स टॉट बैंड्स बन जाते हैं, जो कि ओवर यूज इंजरीज की वजह से हो सकता है या कोई बैड पोस्चर की वजह से, अर्गोनॉमिक्स में उसके कुछ प्रॉब्लम, बायोमैकेनिक्स में प्रॉब्लम है, या गलत तरीके से हम कुछ वेट ज़्यादा उठाते हैं, या कभी कभी स्पोर्ट्स में हम वार्म अप अच्छे से नहीं करते हैं, तो जिम में हम कभी वार्म अप प्रॉपरली नहीं करते, तो उसमें हम डायरेक्टली लोड लेते, तो उसकी वजह से भी इंजरीज होती है। 15 ईयर्स से फिजियोथेरेपी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लेकिन जो ये ड्राई नीडलिंग है न्यू कंसेप्ट है, तो इससे जो हमारा फिजियोथेरेपी प्रोफेशन है या फिजियोथेरेपी जो ट्रीटमेंट है उसमें बहुत आगे बढ़ गया है, क्योंकि उससे बहुत सारे जो कंडीशंस है उनका इमीडिएट जो रिलीफ है वो मिल जाता है उससे। तो आज हमने डॉक्टर सुहेल साहब जो कि एक इंटरनेशनल फिजियोथेरेपिस्ट है, उन्होंने यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया है ये सेशन यहाँ पे ड्राई नीडलिंग का। हम उनका बहुत शुक्रगुजार है कि हमें मौका मिला ये ड्राई नीडलिंग सीखने का, और हम इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे अपने पेशेंट्स पे, जिनको बहुत ज़्यादा रिलीफ विद इन शॉर्ट टाइम मिल जाएगा। First, I'm Bisma Gulzar. I'm a physiotherapist. Today I participated in this workshop. It is regarding the dry needling. It was organized by Dr. Suhail Ahmed Mir, who is our instructor here. तो उन्हें हमें कॉन्सेप्ट दिया कि ड्राई नीडलिंग होता क्या है बेसिकली। इट्स एक्चुअली अ मैजिक थेरेपी विच गिव्स द इंस्टेंट पेन रिलीफ। जो पेशेंट्स होते हैं जिनको बहुत टाइम से पेन होता है, क्रॉनिक पेन होता है, तो उनको फ़र्क नहीं होती है, एंड इवन हु डू नॉट रिस्पॉन्ड मेडिकेशन एज वेल, तो उनमें हम ये जो ड्राई नीडलिंग है वो अप्लाई कर सकते हैं उन पे, तो उनको इंस्टेंट पेन रिलीफ के लिए। एंड वी आर चलिए, इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से लेकर बड़ी खबर आ रही है। यहाँ पर आपको बताते चले कि
पुलिस सरबराह दिलबाग सिंह का एक बड़ा बयान सामने आया है, जहां पर उन्होंने कहा है कि अगर कोई पॉलिटिकल या सियासी जमात या उसके बगैर भी कोई भी अपनी हद पार करेगा, अपनी हुदूद पार करेगा, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बयानबाजी करते वक्त खास ख्याल रखा जाए, ये दिलबाग सिंह की जानिब से कहा गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह दिलबाग सिंह की जानिब से एक बड़ा बयान सामने आया, जहां पर उन्होंने कहा कि हद पार करने को लेकर अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या उसके बगैर भी कोई भी हद अपनी पार करेगा बयान को लेकर, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हुदूद पार करने वाले किसी भी सियासी या गैर सियासी शख्स को उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और बयानबाजी करते वक्त खास ख्याल रखा जाए। ये पुलिस सरबराह दिलबाग सिंह की जानिब से कहा गया है कि कोई भी अगर कोई पॉलिटिकल लीडर होगा या पॉलिटिकल गैर सियासी लीडर भी होगा, वो बयान देते वक्त अपने बयान का खास ख्याल रखे, अपने अल्फाजों का खास ख्याल रखे। अगर उसने हुदूद पार की है तो उनके खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।